Okay, everybody, we are live and let's start off with today's class. Let me just start screen sharing and let me open up the app. Okay, Rayan is also in here. Guys, please try to join exactly at 4:30 because I will prefer if you guys can be here in the class by 4:29 ताकि हम ये 5 minutes यहाँ पे वो waste ना हो रहे हो वालेकुम अस्सलाम so let me just start off and मुझे आप लोग सब बता दीजिएगा if you guys can see the screen and also can you guys hear me clearly or not. Let me do it full screen and let's start off. Pro Tools. So guys, can you hear me clearly and also can you guys see the screen? Yes or no? Quickly in the chat box. Guys, can you see the screen and can you guys hear me quickly? I guess you did. Guys, इंटरनेट इशू है या क्या हो गया? ओके गुड चलो ओके all right, so let's start off. Let me just erase this. Yes, I'm starting off. Let me just start off. और हाँ चलो. So आज हमने पढ़ना क्या है सबसे पहले? That is literally very important. So till this point we have studied how we carry addresses, how we transfer data, how there are control signals, how there are these 5 special purpose registers within your CPU, what is the purpose of each of these registers, and what is MAR, what is MDR, what is that read operation, write operation. We have studied everything that basically a CPU does. But now we need to basically study one small thing about the whole process of execution. So have you guys ever wondered the process behind this whole thing, like किस तरीके से computer data को process करता है, what's the whole mechanism, CPU किस तरह चीजों को fetch out करता है? Oh, just a moment, यहाँ पे. Okay, so CPU किस तरीके से चीजों को fetch करता है? How does the CPU get to know कि यार आगे क्या करना है, पीछे क्या करना था? What instruction to execute and all that. This is basically taught to us by this very good thing known as, known as what? The cycle. And this cycle is basically known as the fetch execute cycle. So let me write it up here. The fetch execute cycle. So by just hearing the word fetch execute cycle, आपको समझ आ जानी चाहिए कि this basically is the entire process of how your CPU, how does the CPU fetch data? What do I mean by fetching data or instruction? Like अगर मैंने ये करना हो कि I want to print a page, so getting that page information is fetching data. फिर उसके बाद decoding basically means कि like if I want to print 2 pages, तो उसको अलग अलग पेज में करना, हर एक पेज को मैं बाइनरी में करूं and all that. This process is basically known as decoding. And फिर उसको finally करना executing. So this is basically how your computer works. हम जो कुछ भी अभी कंप्यूटर के ऊपर करें ना, whether it's me writing these words using my graphic tablet, or whether it's you using Google Meet to take the class, or whether it's you maybe using WhatsApp, Instagram, or whatever chat tool you are trying to use, जो हमारा जो कुछ कंप्यूटर में हो रहा है ना, it is basically following these 3 steps. So at the very start, what happens is that we have the fetching part. Fetching part basically refers to how the computer gets data. तो वो किसी MAR MDR से, जैसे हमने बोला था कि if I want to get data, तो मैं MAR में एड्रेस पुट करूंगा, वहां से डेटा ले आऊंगा. So CPU gets the data. फिर उस डेटा को मैं ब्रेकअप करूंगा डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि अगर 2 + 2 है तो what is 2, what is plus, what is 2, that is decoding. एंड देन उसके बाद क्या आता है? इट इज एग्जीक्यूटिंग. तो आप उसको फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं. बट दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म. अब इसके अंदर वी डिड नॉट इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ दोस रजिस्टर्स व्हिच वी स्टडीड यस्टरडे. हमने बोला था ना कि कंप्यूटर हैव दीज सीपीयू, योर सीपीयू हैज दीज 5 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, एंड इनका क्या काम होता है? हर एक का अपना अपना काम होता है. सो नाउ today we are going to be basically dealing with how all these registers, special purpose registers, let me write it up as SPR, special purpose registers, are used in this very process. तो हमने ये सारे registers को build in करना है, and we need to get it onto this mechanism where we need to fetch data first, then we need to decode it, and then we need to execute it. So let me just paste this picture.
just a moment. I had yes, yes, accumulated is not fetches data. वो अभी हम पढ़ते हैं. Just a moment. आपको समझ आ जाएगी. No, my bad. Where is it? Add and it's image. Yep. I took a screenshot. Just a moment. Yep. Yeah. Again, this is from your book. So let me just paste it. And yes, I guess it's clear enough. Let me check it. Yeah, it's clear. So what happens is कि हमारा computer ना, it operates in this very specific manner. At the start, whenever, definitely computer has to make some decisions, right? Computer के अंदर जो भी होता है, when we program something, it is always like, if this happens, do this, otherwise do this, or do this, or do that. ये सारी चीजें जो होती है ना, computer basically works on yeses and nos. So जो हम बोल रहे थे ना, remember मैंने आपको day 1 पे क्या बताया था? Computer is built up of what? It is built up of circuits, and circuits are either on or off. So हमारे कंप्यूटर में भी सिमिलरली सीन होता है, ऑन और ऑफ. So you either turn it on or turn it off. So it's either yes or either no. So based on those decisions, हमारे कंप्यूटर चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं. So the basic mechanism behind how your computer works is that at the very first moment, the computer asks the CPU. The CPU basically asks, are there any sort of instructions? What do I mean by instruction? हाँ बिल्कुल, it stores the data temporary. बिल्कुल सैफुल्ला. अब जो any instruction की बात आती है, इसका क्या मतलब है? Like, are there any commands to print? Yeah, if I might say, get some data, maybe print some data, maybe copy something, maybe paste something, maybe download something. ये सारे instructions है, right? So are there any sort of instructions? Yes or no? This is the question जिसको हमने address करना है. So let's say the computer is like, okay, yes, there is an instruction, and that instruction might be what? Printing. तो अब हमने printing के execute करना है. How does the computer executes the whole process? So it first of all goes like, कि आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि the program counter or your PC, it basically stores what? हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था? It stores the address, right? Your PC stores the address of what? Address of the next instruction. Yes, you can write. By the way, this is in your book too. This is in your book. अगर आप चाहते हैं आप book से भी कर सकते हैं. I can share this picture too. तो आप बाद में भी लिख सकते हैं. वरना अगर आप चाहते हैं तो अभी भी लिख लो. So your program counter stores the address of the next instruction. So like अगर इससे पहले मैं कोई कर रहा हूँ कि maybe I want to upload something and then I say like print कर दो. So the address of printing will be basically where in program counter. This was something हमने जो कल बहुत detail में discuss कर लिया. So your PC basically contains the address of the memory location of the next instruction, right? तो मतलब अगर मैं print करना चाहता हूँ, I want to print some file which is at the address 001100. Now this was the command, right? Print the file which is at 001100 memory location. So PC now knows the address of the memory location. Guys, no, this is not written in pseudocode. This is not written in pseudocode. आपकी pseudocode वाले ऐसी चीजें नहीं आती. That is something way simpler. आप टेंशन ना लो. Pseudocode में ऐसी चीजें नहीं आती. तो आपके program counter में क्या होगा? It contains the address, right? तो हमें पता लग गया print 001100 is in your PC. Now PC क्या करेगा? Definitely. If I want to process the data, I need to get the data, right? I need to get the data. But data मैं कैसे लाऊंगा? That is important. तो सबसे पहले मैंने याद है हमने data fetch करने के लिए हमने MAR and MDR का concept पढ़ा था. तो हम क्या करेंगे? Program counter में जो address होगा ना, this address, this is basically your address, right? Where the data is stored. So इस address को हम डाल देंगे MAR के अंदर. So the address is then copied from the PC to the MAR. एंड ये होगा किस तरह? यूजिंग द एड्रेस बस. जो हमने उस दिन कल इतनी बड़ी एड्रेस बस टीसीएस वाले बंदे की बात की थी, दैट टीसीएस वाला गाय इज बेसिकली गोइंग टू गेट द एड्रेस फ्रॉम द पीसी प्रोग्राम काउंटर. दिस इज नॉट पर्सनल कंप्यूटर, दिस इज बेसिकली प्रोग्राम काउंटर. दिस इज प्रोग्राम काउंटर, ये वाला पीसी. ओके, सो आपका क्या होगा इसमें? सीन इस तरह हो जाएगा कि नाउ योर MAR विच इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट नाउ कंटेन्स द एड्रेस कि यार इस एड्रेस पे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेटा विच आई नीड टू गेट. सो नाउ MAR को मैं कर लेता हूँ रीड. तो MAR क्या करेगा? रीड ऑपरेशन के बाद MAR जाएगा. No, it has the address. It already has the address. It gets the data which is at that address.
सो एड्रेस तो हमने एमएआर के अंदर स्टोर कर दिया. एमएआर को एड्रेस कहां से मिला? इट गॉट द एड्रेस फ्रॉम बेसिकली प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हैड द एड्रेस, वो गया एमएआर के अंदर कॉपी हो गया. अब एमएआर का काम क्या होगा? इट विल गो टू दैट पॉइंट, दैट एड्रेस लोकेशन, एंड देन इट इज गोइंग टू फेच द डेटा एट दैट पॉइंट. सो अगर हम आगे पढ़ें तो उसमें आते हैं द कंटेंट एट दैट मेमोरी लोकेशन कंटेन इन एमएआर आर देन कॉपीड टेम्परेरीली इनटू एमडीआर. मतलब TCS guy is not the PC, MAR is the PC TCS guy. So like मैंने क्या किया, PC might be आप लोगों में से कोई एक बंदा जो कि maybe who tells TCS guy के भाई go to Ahmed home, go to Ahmed house and tell Ahmed कि यार give me that package which I gave you like 2 weeks ago, and then TCS guy, you also need to bring that back to me. So now the TCS guy is basically MAR becomes the TCS guy, and he's like, okay, I will go to that way and मैं वो चीज ले आऊँ. Now TCS वाला guy goes to Ahmed house, सही है, and at that moment वो उससे वो डेटा ले आता है, जो पैकेज उसने लेना होता है ना, वो पैकेज वापस आ जाता है. Now that package is basically your MDR. रिमेंबर व्हाट इज एमडीआर? मैंने उस दिन क्वेश्चन भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर एमएआर का था, लेकिन एमडीआर क्या था? एमडीआर इज मेमोरी डेटा रजिस्टर. रुको मैं बताता हूँ. एमडीआर इज मेमोरी डेटा रजिस्टर. नाउ एमडीआर क्या हुआ? मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर हमने डेटा स्टोर करना है, विच इज एट दैट एड्रेस. सो अब एड्रेस अहमद हाउस था, अहमद हाउस के अंदर जो डेटा था, मे बी पैकेज, दैट कम्स अप एज योर एमडीआर अगेन. अब ये जो डेटा ट्रेवल होगा किसके थ्रू होगा? थ्रू योर एड्रेस बसेज एंड डेटा बस. तो आपके बसेज यूज होंगे एड्रेस / डेटा बस. तो ये बसेज यूज होके द डेटा इज गोना गो टू वेयर? टू योर सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन. सो ये एक आपको वेरी मिनी सा मैंने वो बता दिया. सैफुल्लाह इज आस्किंग हु टेल्स द एड्रेस, who tells the address is a PC. अच्छा, पीसी को किस तरह पता लगता है कि एड्रेस अगला कौन सा है? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? तो इसको हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि अगर if I want to print, if I print 2 commands at once, if I'm like, okay, print Ahmed's test, Ahmed test might be 001100, right? The thing delivered to the house. No, the thing is कि this TCS guy, this basically होता है इस तरह कि when your CPU wants to execute something, उसने उस डेटा को लाना होता है. Like in simple words, if I want to do 2 + 2, so I need to get 2 + 2 from the data bank या from the memory location, right? तो अब जो 2 + 2 को लाना होता है ना, वो तो सबसे पहले मेरा काम है. Without that, I cannot do any sort of execution. So what happens is that I fetch 2, I get plus, and then I get 2 from the memory. How? I know the locations. मुझे पता है the location of 2 is this, the location of plus is this, the location of 2 is this. What I do is मैं इन सब को ना MAR के थ्रू में भिजवा देता हूँ कि bro go to this point वाला एड्रेस लोकेशन and get the data. MAR जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका एड्रेस होता है, तो वो वहां पे जाके उस डेटा को ले लेता है and then it adds that data into MDR. MDR क्या होता है? MDR is memory data register. So MDR को आपको याद है what definition I told you at the start? I told you it basically has the data which is at the location जहां पे MAR होता है. So like MAR stores the address of a location and MDR basically stores the data which is at that specific location. तो अब क्या हो गया? MDR ने उस पॉइंट के ऊपर जो भी डेटा हुआ, जो भी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू ऑफ 2 प्लस या 2 हुई, वो MDR के अंदर हो गया. And then data from MDR basically goes to CPU for your execution. तो अब जो सैफुल्लाह ने बोला है कि how does the PC know कि यार what will be the next address? तो सैफुल्लाह it goes like अगर मैं ये बोलूं कि प्रिंट रेयान्स टेस्ट, तो रेयान का टेस्ट माइट बी एट 001100. लाइक व्हेन आई प्रिंट, आप गूगल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट करते हो एंड यू डू Ctrl+P एंड यू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट, राइट? आप प्रिंट कर लेते हो, तो जैसे ही वो प्रिंट होता है आपके पास पीसी में तो आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर आल्सो लाइक यू ओपन Ahmed's test, and Ahmed test को भी आप प्रिंट करते हो, print 110011. डेफिनेटली ये दोनों अलग अलग जगह पे है ना, राइट? One might be in Ahmed test folder, another one might be in Reyan's test folder, वगैरह वगैरह. But now CPU at once might be only executing this. तो एट द सेम टाइम दो चीजों को एग्जीक्यूट अगर सीपीयू ना कर सके तो ये चीज कहां जाएगी? ये हम कंप्यूटर को बता देते कि यार व्हेन द सीपीयू इज बिजी, Remember, when the CPU is busy with executing other tasks, आपका जो currently new task है ना, ये आप डाल दो प्रोग्राम काउंटर के अंदर. तो once आपका ऊपर वाला टास्क हो जाए तो your CPU comes to this point. The CPU is like, okay, now I am free. Are there any instructions? तो जब आपके पास तब instructions होते हैं तो सबसे पहले your program counter definitely it has the most recent instruction, right? जो कि अब है अहमद के टेस्ट को प्रिंट करने की. Now your program counter already knows. इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया था कि यार जो आपका अहमद का टेस्ट है उसको हमने प्रिंट करना है. तो once हमें ये पता लग गया कि एड्रेस उसका ये, तो आपका प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? Okay, now let's execute this. Now how does that happen? MAR के अंदर एड्रेस आ जाता है.
बिल्कुल, MAR हैज द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट जो हमने अभी एग्जीक्यूशन करनी है ना, लाइक आई वांट टू प्रिंट अहमद टेस्ट, तो अहमद टेस्ट की जो एड्रेस पॉइंट है जहां पे अहमद का डेटा है, द डेटा, the document, the point, the address where the document stored, that address is copied into your MAR. So आपके MAR के अंदर वो आ जाता है. How is this done? Using your address bus. Remember address bus की कहानी. Now एक दफा वो आपका हो जाए, MAR उस पॉइंट पे आपको पहुंचा देता है जहां पे आपका डेटा होता है, राइट? You reach to that point, you reach to the point in your memory जहां पे डेटा स्टोर है. Now what? Now हमने वहां से डेटा निकाल दिए जो अहमद के पॉइंट्स हैं, जो हमने पेज जिसको हमने डाउनलोड करके प्रिंट करना है, जो हमने प्रिंट करना है. हाउ? अब उसको हमने कॉपी कर दिया एंड वी पेस्ट दैट. यार लेट मी डू दिस, इट्स रियली गुड. ओ होता ही नहीं है यार, मैं क्या करूं, लीव इट. अब देखो जो उसके अंदर जो डेटा है ना, दैट डेटा, आई कॉपी दैट डेटा एंड उस डेटा को मैं किधर डाल देता हूं, आई कॉपी दैट इनटू MDR. नाउ व्हाट हैपेंस, अब the CPU gets the data from where? MDR. Now एक दफा हमारे पास डेटा आ गया, तो इफ यू गाइस रिमेंबर हमने कल एक चीज डिस्कस की थी ऊपर. वी डिस्कस दिस थिंग नोन एज एड्रेस बस नेवर सेंड्स द एड्रेस टू CPU. बिल्कुल बिल्कुल. देखो जब डेटा कॉपी होगा ना, तो डेटा को फिर एड्रेस बस तो नहीं कवर करेगा, डेटा को डेटा बस लेकर जाएगा. डेटा विल ऑलवेज गो फ्रॉम डेटा बस, वो तो एड्रेस सिर्फ एड्रेस बस पे होगा. तो डेटा बस का हमने क्या पढ़ा था, रिमेंबर इट इज बाई डायरेक्शनल. डेटा कैन गो फ्रॉम CPU एंड ऑल्सो गो टू CPU एट द सेम टाइम, हार्डवेयर टू CPU एंड ऑल्सो CPU टू हार्डवेयर. बिल्कुल. सो अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, विच वाज CIR. व्हाट वाज CIR? CIR बेसिकली अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि दिस इज दैट स्पेसिफिक रजिस्टर. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त सैफुल्लाह. रिमेंबर मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि CIR इज बेसिकली द रजिस्टर विच स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. मतलब अगर अभी मैंने प्रिंट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो ऑल द डेटा रिलेटेड टू प्रिंटिंग फंक्शन विल एग्जिस्ट वेयर? इन योर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. रिमेंबर ये हमने कल एक डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की थी. नाउ अगर मैंने प्रिंट वाले ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, लाइक आई नीड टू इवैल्यूएट दिस थिंग जिसके ऊपर अगर आई वांट टू एग्जीक्यूट इट, अब डेफिनेटली दिस मींस, इसका मतलब है कि आई नीड टू टेक द डेटा फ्रॉम MDR वेयर, उस जगह में जहां पे इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है. दैट पॉइंट इज बेसिकली योर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सो इसके बाद वाला जो स्टेप होता है, दैट इज बेसिकली कि द करंट इंस्ट्रक्ट द कंटेंट्स, बेसिकली द डेटा व्हिच आर बेसिकली इन योर MDR, दैट गोज फ्रॉम योर MDR इनटू योर CIR. तो आपके CIR के अंदर यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स, you have to learn these points. ये जो रोड मैप आपको मैं बता रहा हूँ ना, usually literally I personally when I was preparing for the exams, मुझे ये समझ ही नहीं आती थी कि what is program counter, what is CIR. इसको समझना, I know it's a bit difficult, but you need to memorize these steps. कि सबसे पहले आपके पास PC होगा, then उसके बाद आपके PC के अंदर next instruction होगी, that goes to MAR. MAR से आपके पास डेटा MDR में आता है, क्योंकि डेटा अब CPU के पास आ गया. Now CPU has to execute it. Execution किस पार्ट में होती है? I will write it, don't worry. एग्जीक्यूशन कहां पे होती है? दैट इज डन इन CIR. तो आपका डेटा आ जाता है CIR के अंदर. जब एक दफा CIR के अंदर, हाँ आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए. दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द फेच एग्जीक्यूट साइकिल, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना यहाँ पे, फेच एग्जीक्यूट साइकिल. ये जो नाम है ना फेच एग्जीक्यूट, अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ फेच एग्जीक्यूट साइकिल या हाउ, हाँ मोस्टली दे डू गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स. या फिर अगर कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो यू जस्ट नीड टू राइट दिस होल स्टेप कि आपका डेटा किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है. ना एक दफा आपका डेटा CIR के अंदर आ गया, तो इसका क्या मतलब है? CIR के अंदर तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, तो अब वो डेटा तो अपनी जगह CIR इज गोना प्रिंट द फॉर्म. लेकिन अब ये बात है कि अब PC को कैसे पता लगेगा कि भाई नेक्स्ट लोकेशन को वो करो? तो याद रखो, रिमेंबर हमने ये बात की है कि कंप्यूटर्स आर ऑलवेज डीलिंग विद नंबर्स, राइट? नंबर, जीरोस एंड वंस. तो जब आपने एक स्टेप कर लिया ना, मतलब इफ आई एम लाइक आई हैव कंप्लीटेड प्रिंटिंग अहमद्स टेस्ट, नाउ आई एम ओपन टू डूइंग सम न्यू वर्क, या आई वांट टू से कि ओके अहमद का टेस्ट मैंने प्रोग्राम काउंटर से निकाल लिया, लाइक प्रोग्राम काउंटर इज नाउ एम्प्टी, राइट? क्योंकि अहमद टेस्ट किधर चला गया? दैट इज नाउ इन योर CPU, इन योर CIR. तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर कैन नाउ स्टोर सम न्यू फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, जो इसके बाद अगर मैं करना चाहूँ, तो मे बी इफ आई वांट टू मे बी डाउनलोड सम ऐप, अब जो डाउनलोडिंग वाली इंस्ट्रक्शन है, दैट इज गोना गो इनटू माय प्रोग्राम काउंटर. लेकिन देयर शुड बी अ क्वेश्चन, हाउ विल द कंप्यूटर नो कि यार द प्रोग्राम काउंटर इज नाउ एम्प्टी? उसके लिए होता ही है कि इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हेन यू वांट टू इंडिकेट समथिंग कि यार अब इसके बाद वाला आप काम करो, तो उसमें क्या होता है? वी इंक्रीमेंट इट. इंक्रीमेंट बाय 1 बेसिकली मींस कि यार अगर मैं पहले बोलूं कि नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स वर इनिशियली 0,
इंक्रीमेंट का मतलब ये कि इसको +1 कर दो। +1 का मतलब ये कि लाइक इफ आई एम डन विद प्रिंटिंग, नाउ दिस बिकम्स 1. So the moment computer understands कि भाई it went from 0 to a new number 1, this means program counter is now empty, and so now program counter will include the data for the next instruction. So आपका जो next instruction की चीज है, that is going to go into your program counter. अब एक दफा let's say downloading वाला भी हो जाता है. Now Rayan is like wants to play a game. He opens up a game. अब वो गेम जो थोड़ा डिले आ रहा है, दिस मींस उस दौरान द गेम इज इन योर प्रोग्राम काउंटर, राइट. उसका जो एड्रेस है दैट गोज इनटू योर प्रोग्राम काउंटर. अब क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर में फिर इंक्रीमेंट हो गया एंड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर बिकम्स 2. तो अब इसके बाद हमें फिर पता लग गया, ओके प्रोग्राम काउंटर इज नाउ एम्प्टी, लेट मी लोड द एड्रेस ऑफ द गेम इनटू प्रोग्राम काउंटर. अच्छा एक सेकंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, उस पर क्लियर हो जाएगा. एंड एक दफा जब आपको प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसके बाद अगर कोई और इंस्ट्रक्शन हो वो इसके अंदर फेच इन हो जाएगी. एंड उसके बाद ये कि अगर इंस्ट्रक्शन हम प्रॉपर्ली डी कोड हो जाएगा, इट इज एग्जीक्यूटेड. किस तरह एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट है तो अब मैंने प्रिंट करना है, तो डेफिनेटली आई वांट टू मेक श्योर कि द printer gets to know कि यार ये print कर दो. प्रिंटर को कैसे पता लगेगा, printer will receive signals. So what happens is that when I want to execute stuff, I want to send signals via the control bus, or maybe if I want to send data, so that will be through data bus to various components of the computer. So now in this scenario it will be what, it will be your printer. So आपका printer इस context के अंदर चीजों को वो कर देगा. Now once done with that, वो बोलेगा are there any more instructions to service. क्या मतलब, are there anything I want to do after that, like मैंने इसके बाद अगर RDR2 खेलनी है तो I will be like yes, there is something new. CIR is the last part. CIR ये है कि compute, CIR is the point जहां पे डेटा आ जाए तो CPU is now going to start executing it. तो CPU के अंदर जो अगर CIR के अंदर आ जाता है ना कि प्रिंट, तो अब CIR ने ये इंश्योर करना है कि वो इसको वो करे, एग्जीक्यूट करे. सर डेटा बस कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस डेटा, बिल्कुल परफेक्टली. इट इंश्योर्स कि डेटा इज sent from one person, one component to other component वगैरह वगैरह. तो इधर उधर जो डेटा का ट्रांसफर है that is basically done by data bus. And जो इसका what happens to the executed data after the CIR. अच्छा after the CIR देखो, like after the CIR ये होता है ना कि अगर मैं इसको प्रिंट ऑर्डर दे दूं तो CIR is gonna ensure कि डेटा प्रिंट हो जाए. तो इसके बाद यही होता है कि आपके बेसिकली सिग्नल सेंड होते हैं टू द स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट जहां पे मैंने वो चीज करनी है. अब जो सैफुल्ला ने पूछा, सैफुल्ला थी, सर शुड वी इंक्लूड द ACC इन आवर एक्सप्लेनेशन. गुड क्वेश्चन. नाउ ACC क्या होता है, इट इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट इंक्लूड इन दिस. लेकिन अब ACC is something जो इस पार्ट के अंदर आता है. ACC was what? ACC was your accumulator. It stored those values के like 2 + 2 का आंसर 4 है, तो 4 is going to get stored temporary in this. तो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि it is getting finally decoded and then executed, तो इसके अंदर अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टोर होंगे. एंड फिर उसके बाद अगर उसको मैंने अपने स्क्रीन पर लाना है तो वो मैं कैसे करूंगा, डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग द डेटा बस कि यार अगर आई हैव द वैल्यू इन एक्यूमुलेटर, कॉपी दैट वैल्यू ऑन टू माई स्क्रीन. तो द डेटा इज गोना गो फ्रॉम माई स्क्रीन, फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू माई स्क्रीन, एंड देन एक्यूमुलेटर फिर से एम्प्टी हो जाएगा. सो यस, एक्यूमुलेटर या बाकी जो चीजें दोस आर इंक्लूडेड इन द होल प्रोसेस, लेकिन नो यू कैन नॉट राइट एक्यूमुलेटर इन प्लेस ऑफ CIR. देखो there is a difference between accumulator and CIR. आपका अगर कोई चीज, let's say I want to do 4 + 10. This is an operation, right? If I want to execute this, सबसे पहले this is gonna get into CIR. I need to execute something, और उसको मैं जब CPU के अंदर एंटर करूंगा तो CPU के अंदर the person who is going to welcome my data will be like, welcome to CPU brother, if you want to get executed please come to this lounge. And that lounge is basically known as what, that is your CIR. मैं समझाता हूँ CIR. रेहान मैं आपके पॉइंट को भी समझाता हूँ 2 मिनट. CIR के अंदर आपकी ये बात आ गई कि 4 + 10 है. अब वो जब CPU के अंदर इनपुट होगा ना, जब जाएगा CPU के अंदर, तो CPU के अंदर होगा इस तरह कि the person who will be like, okay welcome to CPU, you want your data to be executed, please come to this lounge of ours, which is known as what, which is basically your current instruction register, CIR. अब एक दफा CIR उसको एग्जीक्यूट करने लग जाए, now CIR will be like executing it, और CIR को पता लग जाए, ओ यार these are what, ये तो लॉजिकल भी इसमें आ रहा है, लाइक एडिंग हो रही है, एंड ऑल्सो इट हैज अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी इसके अंदर हो रही है. ओहो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं. सो अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो ये काम किसका बेहतर है, लाइक इन सिंपल वर्ड्स में ये बोलूं कि यार मैंने ऐसे लिखना है, एंड ये सारा हमारे पास सारे स्टूडेंट्स एंड आई सेम, लेट्स से मनाल इज लिटरली वेरी गुड विद राइटिंग इंग्लिश एसेज, राइट, फॉर इंस्टेंस. तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी लाइक, ओके दिस टास्क इज असाइन्ड टू मनाल.
अब ये CIR देखेगा कि यार ये काम कौन अच्छा कर सकता है। नाउ CIR गेट्स टू नो कि ओके दिस इज लॉजिकल एंड अर्थमेटिक, तो ये काम तो ALU ज्यादा अच्छा करेगा, तो ALU के पास डेटा को भिजवा देगा। नाउ दिस इज द प्रोसेस जो CPU के अंदर होगा, CPU इसको भिजवा देगा। नाउ CPU विल बी लाइक ALU विल गेट द डेटा 4+, and ALU विल बी लाइक ओके भाई ये मेरा काम है, आई नो दिस लिटरली वेरी वेरी वेल। टाइप ऑफ, इस तरह तुम बोल सकते हो कि CIR इज द किचन एंड ACC इज द शेफ। हाँ, टाइप ऑफ यू कैन से कि लाइक अब CIR के अंदर, हाँ CIR के अंदर डेटा सारा कुछ आएगा किचन के अंदर, सारा कुछ आएगा किचन के अंदर, ओके सब कुछ किचन के अंदर आ गया। एंड किचन के अंदर अब क्या होगा, हाँ इट इज बाय डायरेक्शनल रेयान, क्योंकि देखो डेटा बस है ना, डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा कैन गो हियर एंड देयर बाय डायरेक्शनल। अब किचन के अंदर सारा कुछ आ गया, राइट, एवरीथिंग इज इन किचन। नाउ किचन के अंदर इफ लेट्स से अहमद स्पेशलाइजेस विद मेकिंग बिरयानी, तो मैं अहमद को सारे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स दूंगा कि अहमद यू शुड मेक बिरयानी। एट द सेम टाइम इफ सैफुल्लाह इज गुड विद मेकिंग चिकन कढ़ाई, तो सैफुल्लाह को मैं दूंगा चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स ताकि वो उसको बनाए। तो एवरीवन इज गोइंग टू डू हिज और हर स्पेशलिटी वाला काम। सो CPU के अंदर भी हमने ये स्पेशलिटी चीजें बनाई है जिसको हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स नहीं बनाए। तो अब ये हमारे पास ALU आ गया, ALU विल बी लाइक ओके 4+10 आई नो द आंसर इज 14, लेकिन अब इस 14 को मैंने टेम्परेरी कहीं स्टोर करना है, राइट, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, रिमेंबर दैट इज स्टोर्ड इन योर एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर के अंदर फिलहाल के लिए हम 14 को स्टोर कर देते। तो इस तरीके से आपका ये कहानी होती है। एट द सेम टाइम ये तो हमने बड़े शॉर्ट फॉर्म में आपको CS O लेवल के लेवल पे सिर्फ ALU ACC ये चीजें बताइए। मे बी देयर इज समथिंग एल्स लाइक XYZ दैट माइट बी हाँ दैट माइट हैव अ डिफरेंट जॉब। ALU is used for calculations. Yep, it is used for logical and arithmetic calculations. तो like अगर कोई conditional statements भी आती है ना कि if 10 is greater than 15 या if Ahmed age is greater than 18 या if Ahmed marks are greater than Ryan's marks, तो ये जो conditional statements है ये भी सारी आपकी ALU ही डील करती है। तो आपको ये समझ आ गई कि it is basically CIR is the बड़ा house, CIR then specializes in telling everyone कि भाई ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। CIR प्रोसेसेस है, बट किस तरह CIR tells everyone कि भाई आपका ये काम है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। How does CIR do that? It sends signals, right? ये हमने पढ़ा नहीं है कि it is finally decoded. Now decoded, the word decoded up here means कि यार अब जो काम ALU ने करना है ना वो ALU को पहुंचा दिया, जो काम लेट्स से किसी और रजिस्टर ने करने वो किसी और रजिस्टर को मिल गया, एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय सेंडिंग आउट सिग्नल्स। सो लाइक सिग्नल्स वो भेजेगा कंट्रोल सिग्नल, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। तो ये जो डू दिस वाला काम है इसको जो ओवरलुक सारा करेगा ना दैट इज बेसिकली योर CIR। नाउ यू वर मेंशनिंग टॉकिंग अबाउट हाउ दिस इंक्रीमेंटिंग थिंगी वर्क्स। इंक्रीमेंटिंग थिंगी बेसिकली मींस, को रेयान ने ऊपर कुछ लिखा था अच्छा, इट बेसिकली मींस जो इंक्रीमेंट वाला काम है ना इट इज मे बी, अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं, लेट्स से आप लोग कभी डॉक्टर्स के पास गए होंगे ना, डॉक्टर क्लिनिक्स, नॉट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के अंदर। क्लिनिक्स के अंदर क्या होता है कि दिस माइट बी अ डॉक्टर्स ऑफिस, ओके डॉक्टर्स ऑफिस एंड यहाँ पे बाहर है वेटिंग एरिया, सो यू हैव दी सीटिंग एरिया, सही है, एंड देन देयर इज दिस बंदा which might be like up here and वो आपको कहता है भाई अच्छा you want to meet the doctor, okay give me 1000 rupees या whatever the rate of the doctor is, सही है, वो आपसे पैसे लेते हैं and then he writes your number, okay you are number 1, आपकी बारी है number 5, आपकी बारी है number 3 and so on। अब होता क्या है कि इस बंदे की क्या जरूरत होती है, इट इज बेसिकली डॉक्टर ये इंश्योर करता है कि जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एग्जैक्टली अपॉइंटमेंट, राइट, अब जब डॉक्टर के पास बंदा जाता है, लेट्स से दिस पर्सन नंबर 1 goes to the doctor, now the doctor is basically he might be here and ये उसकी कुर्सी है, सही है, एंड यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, लेट्स से, अब डॉक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, डॉक्टर यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि ओके 1 पेशेंट केम, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, डॉक्टर विल बी लाइक 2nd पेशेंट केम, 3rd पेशेंट केम। बेसिकली अपॉइंटमेंट होती है जस्ट टू इंश्योर कि डॉक्टर इजीली काम कर सके, लेकिन एट द सेम टाइम रिमेंबर डॉक्टर हमेशा ये लिखता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, डॉक्टर गेट्स टू नो कि यार एक एक पेशेंट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, सही। अब मुझे एक बात बताओ, द मोमेंट आई राइट 2 के बाद आई राइट 3, मतलब अब ये 5 पेशेंट्स मैंने देख लिया, लाइक मैंने अभी तक 5 पेशेंट्स को डील कर दिया, द मोमेंट आई राइट 5, जो बाय अपॉइंटमेंट वाला बंदा है उसको समझ आ गई ना कि यार इसने 5 बंदे कर दिए, नाउ ही इज विलिंग टू लुक फॉर द 6th बंदा, राइट, उसने 6ठे बंदे को इनवाइट करना है, द 6th पर्सन। नाउ द कंप्यूटर ऑपरेट्स इन अ वेरी सिमिलर मैनर, होता है इस तरह कि लाइक व्हेन आई एम लाइक सेइंग कि ओके आई हैव एग्जीक्यूटेड 1 इंस्ट्रक्शन, दैट इंस्ट्रक्शन इज प्रिंटिंग,
तो मैं अपने जो हमारा इंक्रीमेंटिंग पीसी होता है ना, पीसी, आई इंक्रीमेंट इट लाइक इनिशियली लेट्स से इट वाज 0, then I do it as 1. The moment I shift it to 1, the program computer understands कि यार एक चीज इसने execute कर दी है. Now this means he is willing to get someone next इसके बाद. मतलब he has already started looking at someone who is examining a patient, and now this means that the patient, the moment he leaves, doctor will be free to expect someone new, some other patient to come in ताकि वो उसको examine कर सके. तो जो अब इसको मैं increment करता हूँ, तो कंप्यूटर क्या करता है, when you increment the program counter, the computer gets to know कि भाई okay, this means the CPU has executing something, वो किसी काम पे लग गए, बट वो ये बोल रहा है कि यार ये होते ही I will be free to check someone else या कोई न्यू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा. तो प्रोग्राम काउंटर अगर एक चीज चल गई, नेक्स्ट मोमेंट में ये बोलूं कि यार अपना आई वांट टू प्ले गेम, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन, दिस वाज प्रिंटिंग, दिस वाज डाउनलोडिंग गेम, तो डाउनलोडिंग गेम के दौरान ही मैं गेम को रन कर दूं, तो मेरा प्रोग्राम काउंटर इज बिकम 2, गोना बिकम 2. कब 2 बनेगा? 2 तब बनेगा जब मैं ये बोलूं कि ये वाला पर्सन एग्जीक्यूटिंग के लिए चला गया, तो अब मैं ये बोलूं कि 2 आ गया, तो इसका मतलब नाउ माय प्रोग्राम काउंटर इज एम्प्टी. अगर आपने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है तो आप मुझे बता दो, आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर उसको टेम्पररी इतना स्टोर कर दो, जो कि हमारे यूजुअली जो कंप्यूटर को लोड करते हुए डिलेज आते हैं, जिसको हम लेटेंसी डिलेज बोलते हैं. यार इंक्रीमेंटिंग पॉइंट बेसिकली मीन्स, इन वेरी सिंपल अल्फाज, आप यहां से पढ़ो, the value in this PC is then incremented by 1. Incremented by 1 का जो in the word increment by 1 means increase by 1. So आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो आपका पीसी होता है ना, प्रोग्राम काउंटर, इट हैज, यार आपको मैं किसी और एग्जांपल से समझाता हूँ. पीसी है ना, पीसी प्रोग्राम काउंटर हैज सम स्टेटस बार. ओके, स्टेटस बार, इस स्टेटस बार का ये काम होता है ना, इट मूव्स. तो द मोमेंट शुरू में आप कंप्यूटर लोड करते हैं, आपने कोई चीज ओपन नहीं की, दिस इज 0. अब यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग, आपने गूगल क्रोम खोल दिया, गूगल क्रोम डायरेक्ट ओपन हो गया. एट द सेम टाइम आपने ना फाइल एक्सप्लोरर भी खोल दिया. फाइल एक्सप्लोरर एट द सेम टाइम एक मोमेंट में तो एक चीज हो गई. अब क्या होगा? अब मसला हो गया, क्योंकि एक टाइम में तो एक होगा, तो आपका प्रोग्राम काउंटर विल बी लाइक ओके, एक चीज को एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू 1. हमने अभी तक एक चीज ओपन की है, सही है, एक टास्क अभी तक एग्जीक्यूट हो गया, तो आपका स्टेटस बार 1 में चला गया. उसके बाद लेट्स से जैसे ये 1 पे जाता है ना, तो आपका प्रोग्राम काउंटर पीछे समझ जाता है कि यार हमने गूगल क्रोम को ओपन कर दिए. अब अगर लेट्स से गूगल क्रोम ओपन हो गया, उसके बाद आपने फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर दिया. द मोमेंट फाइल एक्सप्लोरर आपका पीसी से किस में जाएगा? CIR के अंदर. The moment it goes into your CPU for execution, आपका प्रोग्राम काउंटर तो खाली हो गया, राइट? It gets empty. Now it is open to new data. अब न्यू डेटा कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? अब पीसी क्या करता है? पीसी इज लाइक ओके, इंक्रीमेंट माई स्टेटस बार. इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज बाय 1, तो मैं इस 1 को कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू 2. द मोमेंट इट बिकम्स 2, आपका कंप्यूटर इस तरह प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग इसकी इस तरह की जाती है कि यार व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टेटस बार चेंजेस, जब भी whether it goes from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, whenever the value of status bar changes, आपका प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन अगर नहीं है, दिस मींस इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. जब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, इसका मतलब CIR के अंदर डेटा चला गया. ओपन टू डेटा, अगर किसी ने डेटा भिजवाना है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एट दिस मोमेंट आई एम लाइक ओके, आई वांट टू डू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंटिंग दिस डॉक्यूमेंट. तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आ गया? इट गेट्स माई प्रिंटिंग वाला कमांड. अब इसके बाद क्या हुआ? CPU ने वो गेम वाले इंस्ट्रक्शन चला दी. अब उसके बाद जब एक दफा वो हो गया, सेम टू सेम साइकिल रिपीट हो गया, प्रोग्राम काउंटर से प्रिंटिंग वाला कमांड गोज टू CIR. सो जो प्रिंटिंग वाला काम है, that goes into CIR, and your status bar it will be like okay, I have done 2 tasks for today, now let me increment it to 3. अब ये 3 हो गए, तो फिर कंप्यूटर भी like oh, status bar की value change from 2 to 3, this means program counter is again empty. तो कंप्यूटर will be like are there any sort of instructions? अगर आपने कोई चीज करना है तो you might be like open YouTube, तो YouTube वाली जो चीज है वो इसके अंदर आ गई, and at the same time आपका जो CPU है that is basically executing printing. तो जब प्रिंटिंग वाला काम हो गया, CIR gets empty. CIR is like PC, आपके अंदर कोई एड्रेस या कोई काम है तो मुझे बताओ, तो जो YouTube वाला खाता है, दिस गोज इनटू योर CIR, ये इधर आ गया. एंड अगेन आपका जो PC है दैट इंक्रीमेंट्स टू 4. Now it is like I've done 3 tasks for today. The moment it changes value from 3 to 4, the program counter will be and the computer will be like okay, again PC is empty, are there any data या instruction? तो PC के अंदर चल जाएगा. अब आपको समझ आया इंक्रीमेंटिंग का क्या मतलब है? CIR कंट्रोल ऑल थिंग, बिल्कुल. CIR इज बेसिकली आपका CPU ना. तो जब कोई चीज एग्जीक्यूट होगी तो सारी इंस्ट्रक्शन, CIR जब रुक जाए तो और कोई चीज काम ही नहीं करेगी. CIR इज द मेन हेड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
अब इसमें अहमद ने एक मिनी चीज मुझसे पूछी थी कि व्हाट वाज दिस MAR एंड MDR वाली कहानी. सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. अहमद, बेसिकली होता ही है कि अब जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर डेटा आ गया ना, नाउ प्रोग्राम काउंटर हैज दैट इंस्ट्रक्शन. अब उसका ये कि लेट्स से इफ आई वांट टू प्रिंट द एड्रेस, हमने ये पढ़ा, जस्ट लेट मी गिव अ क्विक रिकैप. प्रिंट द एड्रेस, प्रिंट द डॉक्यूमेंट विच इज एट द एड्रेस 001100. अब होता क्या है, आपका ये डेटा, इसके ऊपर तो डेटा सीपीयू को चाहिए ना, सीपीयू वांट्स द डेटा फाइल. लेकिन डेटा फाइल ऐसे थोड़ी आता है कि मैं बोलूं कि यार डेटा भिजवाओ, इस तरह थोड़ी होता है. कंप्यूटर हैज अ प्रॉपर मैकेनिज्म. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स दिस एड्रेस, इट स्टोर्स द एड्रेस के जहां पे डेटा फाइंड होता है, तो वो MAR के अंदर कॉपी कर देता है एड्रेस को. नाउ MAR, रिमेंबर व्हाट MAR डज, MAR गोज टू दैट पॉइंट जहां पे वो डेटा एग्जिस्ट करता है, तो वो जाता है उस पॉइंट पे जहां पे मेमोरी में वो डेटा स्टोर है, लाइक 001100 पॉइंट पे हो जाता है. देन इट कॉपीज द डेटा व्हिच इज बेसिकली एट योर MAR इनटू योर MDR. तो MDR के अंदर आपके पास डेटा आ जाता है. फिर MDR के अंदर डेफिनेटली MDR स्टोर्स द डेटा, राइट. वो डेटा फिर MTR से आपका जाता है CIR के अंदर, एंड CIR executes it and the whole thing continues and फिर repeats. इसी तरह आपका पूरा कंप्यूटर चलता है, just like this whole diagram. तो आपको ये वाले पॉइंट्स याद होने चाहिए. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज चाहिए तो इट इज मोर ऑफ लाइक, अगर मैं आपको समराइज फॉर्म में इसको बताऊं, सो इट इज योर प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर से आपका जाता है MAR stores the address which is found in your program counter. MAR goes to that address point, it gets the data and it stores the data in your MDR. MDR basically execution का मतलब है कि यार if I had the instruction of printing, तो जो execution का ये मतलब है कि प्रिंटर को सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाई प्रिंट दिस पे, तो जो प्रिंटर करके पेज आपका बाहर आ जाता है ना, इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं. सो MDR हो गया. MDR के बाद डेटा कहां पे जाता है, इट गोज इनटू योर CIR एंड CIR बेसिकली देन एग्जीक्यूट्स इट. एंड यही सेम चीज फिर आपका रिपीट में, लूप में चल रहा होता है. दिस बेसिकली रिपीट्स. So loop basically means repeat, circle के अंदर. So this is full diagram of what? This is your fetch, execute cycle. हाँ, इट टाइप्स ऑफ, जो आपका CIR है, इट एग्जीक्यूट्स इट. तो अगर आप ऑर्डर, कंप्यूटर को आप ऑर्डर देते हो, यू गिव ऑर्डर, इट बेसिकली इट डज एक्शन ऑन दोज ऑर्डर्स एंड उनको इंश्योर करता है कि यार वो सही तरीके से हो गया. सो दिस इज द होल फेच एग्जीक्यूट साइकिल वाले ड्रामा. अब आप लोग को इन 1 2 3 4 5 इन 4-5 स्टेप्स का बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए. ये आपकी यूजुअली क्वेश्चंस में आता है, सही है. सो नाउ वी आर डन विद व्हाट, वी आर डन विद दिस बोरिंग फेच एग्जीक्यूट साइकिल. यहां तक तो सारा क्लियर हो गया होगा. जी जी, एक सेकंड, ये लो, आप लोग ये कॉपी कर लो. अब जो हमने पढ़ना है ना यार, फिर भी मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छे से समझ आए हो तो दैट्स गुड टू नो. नाउ अभी जो हमने पढ़ना है ना, तो अगर आप लोग को याद हो, आई वाज, यार हम बाद में खेलेंगे. बेसिकली वी नीड टू आल्सो इंश्योर कि द कोर्स गोज अकॉर्डिंग टू the whole planning, and if it goes a bit out here and there, so do know कि I will be taking extra classes, क्योंकि कोर्स को हमने प्रॉपर टाइम में खत्म करने. alongside I want to make sure कि आप लोग के साथ में थोड़े पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी करूं ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी से हो. So now Saifullah, are you done writing this thing? Yes, Saifullah. यार ये कोर्स इंशाल्लाह it's gonna end towards okay, it's gonna end towards October के end तक. By for the October-November kids, it's gonna go till their very exam point. So like you can say 11 से पहले उनका P1 सारा हो चुका होगा, 22nd से पहले उनका P2 हो चुका होगा. And for the May-June kiddos, आप लोग के फिर उसके बाद remaining 1st of November तक the course is gonna continue. And जो हमारे पास remaining time बचा, उसके अंदर we are going to do inshallah past paper questions, topical questions, if you guys want to revise some content, तो वो चीजें हम उधर detail में करते जाएंगे. But now we need to make sure कि पहले ये course खत्म हो जाए. So Saifullah, is it done? I can share the picture later on अगर वो है. I will share the notes, so आप वहां से कॉपी पर कर लेना, क्योंकि अभी ये, चलो सही. So now we have discussed the fetch execute cycle in great detail. Now do you know, अभी हमने एक चीज पढ़नी है. If you guys remember, मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि usually a question comes on how to improve the performance of a CPU. The good point is various, हाँ, multiple hardware devices. Components का मतलब है speaker might be a component, your monitor might be a component, your headphones might be a component, your keyboard might be a component. So ये सारे जो input output devices है, these are basically components. At the same time जो आपके कंप्यूटर के अंदर बाकी चीजें, memory might be a component. So ये सारे कुछ जो कंप्यूटर के अंदर hardware use होता है, those are basically components. So if you guys remember,
I talked yesterday about how there might be a question about performance. And the good part is कि we are going to be studying that today, inshallah. So performance of computers. अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? We need to basically study how can you increase the performance. Yes, it requires control bus, Saifullah, for the fact के नहीं देखो अगर मैं ये इंश्योर करूं कि कोई डेटा टाइम के साथ पहुंचे, that is done by your control bus, and if I want to send data तो the data is sent from control bus. तो synchronization या कोई out of order ना हो रहा हो, that is done by control bus, and data sending is basically done by data bus. So now Saifullah said अपग्रेडिंग, सॉरी रेहान सेड अपग्रेडिंग. अब अपग्रेडिंग का पॉइंट तो हमारे पास, हम तो जनरल बोलते हैं ना, नॉन सीएस पीपल आर लाइक ओके वी नीड टू अपग्रेड पीसी. बट इफ लेट्स से आई से ब्रो यू हैव टू keep the same PC, same device, but I still at the same time want to ensure कि यार जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए. So what are those common 3 to 4 steps जो आप करोगे which is going to make sure कि आपकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की इंक्रीज हो जाए. So the very first thing जो कि आप लोग को समझनी है ना, that is basically the use of widths. Buses widths. हमने ये पॉइंट कल बहुत डिटेल में पढ़ा था. आई वॉन्ट बी गोइंग मोर इनटू डिटेल, लेकिन आप लोग को याद होगा मैंने आपको बताया था एड्रेस बस एंड डेटा बस की विड्थ होती है. द मोमेंट यू इंक्रीज द विड्थ, the more data can travel at once, and this simply means कि यार when you can make sure कि more data can go at once, this basically means कि आपकी faster transmission होगी, faster तरीके से कंप्यूटर में डेटा इधर उधर जाएगा, so the thing which might have taken 10 seconds will now be done in 2 seconds. So the first point जो आप लोग को समझना चाहिए, बिल्कुल fast signals and all that, आपको ये पता होना चाहिए कि the greater the bus width, the greater the bus width, the greater the performance of the computer. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So आपको इसके अंदर usually question आएगा कि how can you increase the performance? So you need to write increase the width of. So आप width of किस bus की ज्यादा कर सकते? You can increase it of address bus. If asked in the exam, do write address and data bus. आपने ये दोनों लिखने हैं, address and data bus. इनको याद से लिखने हैं, सही. Address and data bus, and इसके ऊपर कहानी ये लिखनी है तो कि greater the width, better the performance. Now I won't be going more into detail. ये हमने काफी डिटेल में कर लिया था कि इसमें बिट्स वाली कहानी होती है. तो वो बिट्स को आप 16 से 32 बिट्स में जाएंगे तो आपकी विड्थ इंक्रीज हो जाएंगे, and it's going to ensure that your performance improves. Now we are done with the first point. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात. अगर एग्जाम में आते हैं सबसे पहले तो लिखो ही विड्स के बारे में, क्योंकि सबसे सिंपल भी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड कहानी भी नहीं है, एंड सब एवरीथिंग इज गुड टू गो. नाउ द सेकंड पॉइंट जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, सेकंड पॉइंट जो आप लोग लिखोगे ना, दैट इज बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स, मल्टी कोर्स. आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोग कंप्यूटर्स लेते हुए समटाइम्स द पर्सन इज लाइक दिस लैपटॉप हैज 4 कोर्स, इट इज अ क्वाड कोर प्रोसेसर, it is a dual core processor, it has 8 processors, it is a 8 core laptop. तो different number of cores, इसका क्या मतलब होता है? कोर्स जो आपके कोर्स, आपने कभी प्रोसेसर का वो सुना होगा प्रोसेसर के अंदर, नो कोर्स, CORES कोर्स. जो हम प्रोसेसर का होता है ना, प्रोसेसर्स, तो हम ये बोलते हैं कि यार आपने ये हाँ फोन्स के ऊपर आपने सुना होगा डुअल कोर, या फिर हमने बोला होगा क्वाड कोर, या फिर आपने अभी जो न्यू लैपटॉप्स है उनमें ऑक्टा कोर का शायद सुना हो, 8 कोर्स. 2 मतलब डुअल कोर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 2 कोर्स लगे हो. क्वाड कोर का क्या मतलब होता है? 4 कोर्स लगे हो. अगर अभी भी आप अपने लैपटॉप या अगर इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज डिवाइस, तो विंडोज डिवाइस के अंदर आप इसमें क्या करोगे, आप जाओ दिस पीसी वाले पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, यू विल बी ओपनिंग द सिस्टम प्रॉपर्टीज वाला फाइल. उसके अंदर आप देखो अंडर द डेस्कटॉप नेम एंड ऑल दैट देयर माइट बी समथिंग कि कोर i5 के साथ आगे लिखा होगा कि डुअल कोर, क्वाड कोर या नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. दीज आर बेसिकली इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कोर्स. अब नंबर ऑफ कोर्स का क्या मतलब है? Every core means some new processor. Every core is basically a processor on its own. So मतलब है when I say, so हाँ बिल्कुल core i5 is a processor.
Core i5 के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स होंगे, सही है. मे बी यू हैव अ क्वाड कोर Core i5 प्रोसेसर, विच मीन्स कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर 4 कोर्स लगे हो. मे बी यू हैव अ डुअल कोर प्रोसेसर, तो मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 2 कोर्स लगे हो. मे बी आपके पास अब नया लैपटॉप है, यू गॉट दैट गेमिंग लैपटॉप, सो इट्स लाइक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर 8 कोर्स लगे. नाउ व्हाट इज कोर? बेसिकली कोर इज योर प्रोसेसर. कोर इज अ प्रोसेसर. एंड कोर को बेसिकली प्रोसेसर को एक दूसरा नाम अगर हम बोले ना, तो दैट विल बी कोर. हर कोर जो है ना, हर कोर इंक्लूड्स इट्स ओन एएलयू, its own control unit and its own components related to processing. तो मतलब जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स मैंने बोले ना ऊपर, CIR एंड ऑल दोस थिंग्स, हर एक कोर का अपना एक ALU होता है, अपना एक कंट्रोल यूनिट होता है, अपना एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है. सो इन सिंपल अल्फाज, जो हम ऊपर CPU की बात नहीं कर रहे थे, वन दैट होल CPU इज बेसिकली वन कोर. नाउ व्हेन यू इंक्रीज दिस नंबर ऑफ कोर्स, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है. व्हाई? बिकॉज लेट्स से आपके कंप्यूटर के अंदर 2 कोर्स लगे हुए हैं. दिस इज कोर 1 एंड दिस इज कोर नंबर 2 एंड दिस इज ऑल टुगेदर दिस इज योर CPU. दिस इज ऑल टुगेदर योर प्रोसेसर. सही. तो जो मैं आपको, आपने कोर i5 की बात बोली है, दिस माइट बी योर कोर i5 एंड दिस इज वन कोर एंड दिस इज द सेकंड कोर एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर. सही. इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर. अब लेट्स से एक कोर एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकती है. वी नो दैट, राइट? लाइक जो हम पीसी की बात कर रहे थे कि इफ आई सेंड प्रिंट, तो एट द मोमेंट जब तक प्रिंट वाला एग्जीक्यूट ना हो तब तक आई कैन नॉट ओपन गूगल, राइट? तो इसलिए माइट बी डिले आ रहा हो. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इफ आई एम लाइक प्रिंट ABC, this is one instruction, and at the same time I'm like also download something. तो अब ये दो अलग इंस्ट्रक्शन. नाउ इफ आई हैव अ सिंगल कोर, उस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि वन इज गोना गेट एग्जीक्यूटेड एंड द अदर वन विल गो इनटू द प्रोग्राम काउंटर. बट नाउ इन दिस सिनेरियो होगा इस तरह कि मे बी आपका प्रिंट ABC विल बी डन बाय वन कोर एंड डाउनलोडिंग वाला पार्ट विल बी डन बाय द सेकंड कोर. तो रादर देन बोथ वन ऑफ द टू गोइंग इनटू प्रोग्राम काउंटर एंड वो इंतजार करे कि दूसरा हो जाए, हमने एक टाइम के अंदर 2 प्रोसेसेस, 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए. तो आपको समझ आ गई होगी कि व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्स, you can ensure कि there are multiple instructions being executed at once. So जब multiple चीजें एक टाइम में हो रही होती है, तो this means कि your performance is gonna improve. So ये basic चीज होता है कि core is basically all of these processor. हर एक core का, अब like this might be one core, इसका अपना ALU होगा, अपना control unit होगा, अपने special purpose register होंगे, like control, CIR, maybe like program counter and all that. Just like that, core number 2 का भी same to same यही scene होगा, वो अपने context में होगा. Now if it is like the laptop which I had previously, it had, I guess if I'm not wrong, it had 4 cores. So उसका एक core 3 भी है and एक core 4 भी, and all of them are basically linked with each other very well using these buses, right? तो अब इसके बाद बिल्कुल, if your computer has 4 cores, तो वो इस तरह का सीन हो गया, right? अब उसमें क्या हुआ, आपके कोई और इंस्ट्रक्शन आ गई कि लाइक लैपटॉप पर आप मे बी प्ले समथिंग. सो जब प्लेइंग वाली होगी, मे बी वो C3 के कर रहा हो, एट द सेम टाइम यू वांट टू मे बी प्ले गेम, तो जो गेम वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दैट माइट बी डन बाय कोर नंबर 4. सो अब आपने एक टाइम के ऊपर 4 इंस्ट्रक्शंस को कर दिया. ऑल ऑफ दिस इज डन एट वंस. व्हाई? क्योंकि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम में टैकल करें थैंक्स टू द मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्स. तो इस पॉइंट का मकसद ये जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अंडर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज बेसिकली व्हेन यू इंप्रूव, व्हेन यू इंक्रीज, ये पॉइंट लिख लेते हैं, इंक्रीज the number of cores, this is increase, okay? When you increase the number of cores, you can execute, every core will have its own ALU, control unit and register. So you can execute multiple instructions at once. What do I mean by instruction? Maybe printing एक हो, gaming एक हो, तो आप multiple instructions at once को execute करेंगे. क्यों? Each instruction is going to be executed by one of the relevant core. तो जब आप number of cores को बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है आपके performance is going to increase, क्योंकि कम time के अंदर आप ज्यादा चीजें execute कर सकते हैं. So this is the second point जो कि आपको पता होना चाहिए. Now coming to the, yes, all the cores are identical. There is no preference. So if your CPU, like you have a Core i5, so the Core i5 is a broader one. And with that Core i5, you have 4 cores. Each of them are identical, but काम ये कि हर एक ने एक specific task को एक time पे execute करना है. So ये सीन है.
Yeah, opening new tabs does not depend upon the core, to be honest, but it is like, dekho, if you want to play YouTube on one core and then you're taking Classroom on the other one, like right now, I have also my webcam right now, it's open, right? So when my webcam is also open, it is ensuring कि मेरा computer इसको process कर रहा है. So when it is processing it, maybe जो मेरा webcam को process कर रहा है, that might be done by one core. Maybe जो YouTube video दूसरे tab पे play हो रही है, that is being done by something, a different core. Maybe if I'm speaking right now and इसको कोई execution कर रहे हो, कोई graphics use हो रहे हो, that might be executed by something else. तो ये जो different task को different चीजें execute कर रही होती है ना, this might be on different cores. So when you increase the number of cores, it's automatically going to improve this performance of your yeah, Samsung all the tablets, every electronic device which you have, the one you are taking class from, whether that's a Samsung tablet, whether that's your iPad, whether that's your phone, laptop, computer, consoles, जो भी आपके electronic CPUs है ना, तो आपके cores होते हैं. You can find it in your हार्डवेयर. आप इस तरह इसको नहीं ढूंढ सकते, बट इट इज समथिंग कि आपके सीपीयू की जो एक चिप आती है, इफ यू रिमेंबर, आई इवन गेव यू no, I guess you can. I guess you can. If I'm not wrong, my laptop, current laptop, let me see. Cores, कितने cores है? Let me see. अच्छा, I have a 10 core CPU right now. So देखो, it can be, it depends on the laptop. उसमें ये होता है कि 4 परफॉर्मेंस कोर्स हो गए, 6 आर एफिशिएंसी कोर्स. तो ये चीज़ ऐसे कि ये वैसी डिस्कशन के लिए, बट यस इट कैन बी. आई हैव अ मैकबुक, सो मैकबुक पे आई गेस इट्स यू हैव मोर नंबर ऑफ कोर्स मे बी. लेकिन विंडो लैपटॉप में भी नो, इट्स एयर. या देखो, आपके हर उसमें कोर्स ज्यादा हो सकते हैं. Even my older laptop had 8, if I'm not wrong. Let me just check it. I had a Lenovo IdeaPad before that, and I guess it had 8. Yeah, it was Core i5 82 500, I remember, but अब इसके अंदर कहीं शो नहीं हो रहा. I will have to see my laptop, उसके लिए मैं आपको फिर बाद में बता देता हूँ, but I guess it was 4 या 8 कोर्स में से एक बात. But now back to where we were. हमने 2 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए. एक बस विड्थ हो गया, and then number of CPUs. Now the third point, which is very very important, is basically discussing आपका सिस्टम क्लॉक वाली बात. Now what is system clock? अगर आपको याद हो, मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि यार, इफ वी वांट टू इंश्योर कि द होल एग्जीक्यूशन इज वेरी सिंक्रोनस मैनर के अंदर, कि एवरीथिंग इज वेरी सिंक्रोनाइज्ड, सब कुछ टाइम के ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए हमने कंप्यूटर में एक चीज इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज सिस्टम क्लॉक. सिस्टम क्लॉक बेसिकली इंश्योर्स कि यार आपका सब कुछ ना टाइम के अंदर हो रहा है. व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टम क्लॉक? मतलब इफ आई से कि सिस्टम क्लॉक को मैं सेट कर लेता हूँ, हाँ, सिस्टम क्लॉक बेसिकली इंश्योर्स, लाइक इफ आई सेट इट एज कि यार 2 सेकंड के अंदर यू नीड टू डू वन इंस्ट्रक्शन. सो क्या होता है, आपका कंप्यूटर इंश्योर करता है, योर कंप्यूटर इंश्योर्स दैट within 2 seconds an instruction must be executed. It works in a manner similar to this example जो मैंने आपको दी है. सही है? Oh man, that's something way big. But do you know there are super PCs too? So uske upar I remember I was watching this video once, playing Fortnite on super PC, and it was giving him some 2000 FPS, I remember. So yes, you do have such computers too. So back to where we were. System clock क्या होता है? It basically is a type of clock जो कि इंश्योर करता है कि यार इस टाइम के अंदर, जो उसके मैं टाइम लगा देता हूँ ना, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है. अब इसमें परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है? इट बेसिकली, अब ये जो क्लॉक होता है ना, द क्लॉक, दिस बेसिकली डिफाइंस द क्लॉक साइकिल. क्लॉक साइकिल से क्या मतलब है? द सेम एग्जांपल कि यार कंप्यूटर के जितने ऑपरेशंस हैं वो एक ऑर्डर के अंदर कैसे हो, कितने टाइम में हो, वगैरह वगैरह. तो आपका जो सिस्टम क्लॉक है ना, इट इज लिंक टू कंट्रोल बस. सो योर कंट्रोल बस इज गोइंग टू बी सेंडिंग सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स, कि यार 2 सेकंड के अंदर यू नीड टू डू दिस. सिग्नल. नो, दीज कंप्यूटर्स आर नॉट मेड फॉर गेमिंग, दीज आर फॉर लाइक सम सुपर बिग टास्क लाइक दोज डन बाय नासा वगैरह, processing something at a very large scale. तो उनके लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं. Also for servers, I believe उसमें भी काफी, like your gaming PC is way smaller than a super PC. Okay, so now अब इसमें इंक्रीज करने का एक तरीका जो होता है ना, दैट इज कि यार अब मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स है ना, इसको अगर मैं ओवर क्लॉक कर दूं, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ओवर क्लॉकिंग. ओवर क्लॉकिंग बेसिकली रेफर्स कि यार अगर मैं इनिशियली ये बोलूं कि 2 सेकंड्स के अंदर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना, आई माइट बी लाइक यार 0.5 सेकंड के अंदर यू नीड टू इंश्योर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो. आई ओवर क्लॉक्ड इट. द वर्ड ओवर क्लॉकिंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि यार व्हेन आई
purchase that PC, like if you buy a HP laptop, an HP laptop अगर आप लेते हैं, if you go to your PC settings, वहाँ पे कभी कभार इस तरह की चीजें होती हैं 3.9 GHz। रिमेंबर, आप कभी कंप्यूटर के सेटिंग्स देखो, गीगा हर्ट्स वाले वर्ड यूज होते हैं। तो व्हाट इज दिस गीगा हर्ट्स वाली चीज जो आप कंप्यूटर सेटिंग्स में देखते हैं? आप अगर आप लैपटॉप टैबलेट के भी चेक करें, उसके भी आप सिस्टम क्लॉक स्पीड ही होती है। दिस इज द क्लॉक स्पीड। आप सीपीयू के साथ लिखा होता है। now Ahmed, if you go back to your settings, it might be like i5, and उसके बाद आपके यहाँ पे जनरेशन नंबर होते हैं। like for me it was 8250U, for my older laptop it was the 8th generation i5 से, and उसके बाद it is something like @4.33 gigahertz। तो ये जो GHz है, this is basically your system clock, so it tells कि यार इस स्पीड के ऊपर at this speed an instruction is being executed। so अब मैंने उस पे आपको एग्जांपल थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया कि लेट्स से इफ आई कन्वर्ट दिस 4.33 वाली फुल कहानी इनटू समथिंग लाइक कि 2 सेकंड के अंदर इंस्ट्रक्शन हो। इफ आई इंक्रीज द स्पीड, इफ आई एम लाइक ओके आई कन्वर्ट इट टू 7 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब है कि 7 क्लॉक साइकिल्स एक सेकंड के अंदर अगर पूरे हो रहे हैं तो मतलब एक टास्क इट इज गीगाहर्ट्ज। लेट मी कंफर्म इट टू, लेकिन आई गेस इट इज GHz मींस इज गीगाहर्ट्ज। yes, it's gigahertz या gigahertz एक ही बात हो गई। so it is giga या gigahertz, let me write it, gigahertz। gigahertz is basically the unit for के like अगर एक साइकिल के अंदर, जो हमने ऊपर fetch execute साइकिल पढ़ा है ना, उसके एक साइकिल के अंदर हम एक सेकंड के अंदर हम कितने इंस्ट्रक्शंस एट द मोमेंट हम प्रोसेस कर सकते हैं, that is basically gigahertz। and उसकी जो exact definition it is basically it is like how many actions या how many things have been taking place over 1 billion cycles per second। तो इस तरह की चीजें समझ लो, ये सब चीजें हैं डिटेल में, लेकिन छोड़ो जो भी चीज है, जस्ट नो कि जब आप इसको इंक्रीज करते हो ना तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट करें। सो इनिशियली इफ इट वाज लाइक 4.33, नाउ आई कन्वर्टेड इनटू 7, सो आई हैव लाइक रिड्यूस द टाइम इट माइट बी टेकिंग, राइट। लेकिन अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ फ्रॉम 4.33 टू 7 गीगाहर्ट्ज, दिस इज नोन एज ओवरक्लॉकिंग। Why is it known as overclocking? Because अगर HP ने खुद बोल दिया कि भाई this laptop is only suitable for this speed and I make it go to like 7, तो इसका मतलब है I am overdoing the process जिसके लिए the computer was made। Like if the computer was only suitable for doing operations at a speed of 3.9 gigahertz and I converted it into 7 gigahertz, तो इसका तो ये मतलब है कि यार अगर आप में से कोई only 10 मिनट के लिए भाग सकता है, and I'm like no, you need to make sure कि आप 1 घंटे के लिए भागते जाओ at the same pace, so at the end you might faint। So the same problem occurs, even though overclocking can improve the performance, it can greatly improve the performance। Remember, it can greatly improve the performance कि अगर मैं 1 सेकंड के अंदर पहले 2 चीजें ओपन हो रही है, अभी 4 ओपन हो रही है, तो it is improving the performance, but it comes at a cost। And the problem is there is one small con, and that cons are basically firstly, आपको जो इसमें सबसे बड़ा मसला आता है ना, it is कि there is a great chance of unsynchronized operations। So great chance of unsynchronized operation, synchronized operations, okay, operations। What do I mean by unsynchronized operation? This basically means कि यार if my hardware is slow, let's say मेरा hardware is slow है, if my hardware is slow and it takes 10 seconds yeah, might take 2 seconds to send the data from my hard disk to the CPU, लेकिन I am like no यार ये काम तो 0.5 सेकंड के अंदर होगा। अब 0.5 सेकंड के अंदर the CPU might be working like in this pace, लेकिन at the same moment the data might be coming like at such a slow pace। Now what just happened? आपका data ही order में नहीं जा रहा, the whole thing is out of order, execution is being done faster than the data arrival and all that stuff। तो even though अगर आपकी चीजें faster हो रही हैं, आपकी बड़ा मसला ये है कि आपकी चीजें unsynchronized होंगी। unsynchronized mean कि maybe data पीछे लेट आ रहा हो, आपके ऑपरेशन हो रहे हो, पहले से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। लाइक इन सिंपल अल्फाज मैंने प्रिंटिंग का बोल दिया ना, अब अगर मैं प्रिंटर को सिग्नल भेजूं कि भाई प्रिंट द डेटा, लेकिन मैं हार्ड डिस्क सोच लो कि यार वहां तक डेटा ही नहीं पहुंचा, तो क्या हुआ? प्रिंटर माइट नॉट बी एबल टू प्रिंट एनीथिंग, इट माइट बी लाइक बीप 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 बीप। तो इस केस में क्या होता है एग्जैक्टली अहमद? इस केस में द ओनली इशू इज दैट योर कंप्यूटर माइट क्रैश और इट माइट फ्रीज। So आपका कंप्यूटर क्रैश कर सकता है और फ्रीज भी कर सकता है। And one second point is that when you try to overclock your computer, it has one minor issue, and the great masla with that is कि it can overheat।
so it can overheat your PC. So अगर आपका पीसी कभी कभार गर्म हो जाता है, लाइक अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा थोड़ा अगर गर्म होने लग गया, तो आई कैन फील कि देयर इज अ ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस. आई कैन लिटरली फील इट राइट नाउ. क्यों? द पीसी इज गेटिंग वार्म. सो अगर इसको मैं ओवरक्लॉक भी कर दूं, तो इट माइट गेट इवन फर्दर मोर वार्मर, और गर्म होने लग जाएगा. तो व्हेन यू overheat your PC, it means कि आप, no, it does not necessarily mean कि I have overclocked the PC. It is just कि when you overclock, आपका PC वैसे ही गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से होने लग रही होंगी. Have you guys ever seen कि like if you rub your hand literally very fast like this, आप देखोगे कि आपका हाथ गर्म हो जाता है, आपका हाथ गर्म हो जाए. नहीं, that's a different story. Your iPad getting heat never is not necessarily due to overusing, overclocking by the way. It is just क्योंकि आप बहुत चीजें एक साथ करते तो उससे भी गर्म होने लग जाता है. But like आपको मैंने अभी बोला ना कि when you do like this, your hand gets warm. Now the same thing applies to the computer. When your computer is doing stuff at a very fast pace, it basically overheats your PC. And especially when the PC is not made for that specification, and आप उसको ensure करते हो कि यार आपने जबरदस्ती ये करना है, which basically means कि like मैं इसको overclock कर लेता हूँ for more than what it is made of, तो उस context में आपका PC overheat कर जाता है. And when your PC overheats, तो आपको पता है overheating या heating से क्या हो गया, आपका performance drops. So your performance basically reduces. So आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है. So overheating हो गई या जो भी चीज है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपकी चीजें ओवरहीट होके वो कम हो जाएगी. नाउ एक और चीज मैंने करनी है, उसके बाद फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी. आई नो इट्स 5:35, लेकिन I guess एक last point इसका रह गया, and then let's end it up. Okay, so the very last thing जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो what number of point is this? This is number 3, so it's number 4. Yeah, this is literally very easy. अब आपको ये points याद होने चाहिए. Question आपके पास straight forward आएगा, how to increase the performance of the computer. तो आपने इन चारों में से कोई दो चीजें लिख देनी है. Great to know that. अब fourth point क्या होगा? Fourth point जो आपने लिखना है ना, that is basically use of cache memory. अब आप लोग अगर कभी डिवाइसेस यूज कर रहे हो एंड आप लोग फोन्स के अंदर कभी जाओ गेम की उसमें एप्स की सेटिंग्स में, एंड व्हेन यू गो टू दोस ऐप सेटिंग्स, आप उसमें गेम के उस पे क्लिक करते हो, एंड देन देयर इज समथिंग रिटन एज क्लियर कैश, द स्क्वायर बटन, बिल्कुल जिसके ऊपर लिखा होता है क्लियर कैश. इसको कुछ लोग कैक भी बोलते हैं, कोई उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बट इट इज बेसिकली कैश, CACHE, and it is pronounced as cache. Cache is the pronunciation. अब cache memory क्या करता है? It does not remove the other app. What happens is it removes the data of that app. Like मैं आपको यहाँ पे सेटिंग में दिखा देता हूँ. अगर यहाँ पे मेरे फोन की सेटिंग में आ रहा हो, let me see apps कहाँ पे होते हैं. Apps. I hope यहाँ के अंदर यहाँ पे okay, it's not available up here. लेकिन in Android devices I remember, Android devices में तो ये होता था. आप उधर जाते थे सेटिंग्स में, एंड वहां पे क्या होता था, सेटिंग्स के अंदर आप जाएं एंड्रॉइड में, एंड आप उसमें यार इसमें किसी डिवाइस पे आता है, किसी डिवाइस पे नहीं आता, तो लेकिन आपने उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव कैश. तो जो रिमूव कैश होता है वो क्या चीज होती है? बेसिकली हम ये सोचते हैं कि यार कैश मेमोरी क्या चीज है. टुडे यार इट इज बेसिकली रिटन इन द सेटिंग. कुछ डिवाइसेस में होता है, कुछ डिवाइसेस में नहीं होता. अगर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इस कैश मेमोरी का मतलब क्या होता है, दैट इज समथिंग जो हमने समझना है. कैश मेमोरी जो होता है ना, जब हम कहते हैं कि यार रिमूव कैश मेमोरी, द वर्ड कैश मेमोरी बेसिकली it stores the most frequently used data and instruction. So cache memory uses me, my bad, it should be stores. So it stores, let me erase this, it stores. जो आपकी जो cache memory, it is a new type of memory which stores the most frequently used data and instruction. Use data. Like अगर मैं ये बोलूं कि यार आई एम प्लेइंग अ गेम जिसके अंदर दिस पर्सन इज अगेन एंड अगेन using this instruction of jump. So the computer is like, okay, this person is again and again using the instruction of jump. तो वो करता क्या है, वो instruction वाले जो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जंपिंग होते हैं ना, वो इसको ले जाता है कैश मेमोरी के अंदर. नाउ कैश मेमोरी हैज वन गुड पॉइंट, कैश मेमोरी इज वेरी वेरी फास्ट. इट इज इवन मोर फास्टर देन रैम. सो हमने बोले थे ना कि रैम इज वेरी फास्ट, ये रैम से भी फास्टर देन रैम. तो अब होता क्या है कि व्हेन योर सीपीयू वांट्स टू एग्जीक्यूट समथिंग, like let's say this is CPU, this is RAM,
रिमेंबर हमने क्या बोला था, रैम एंड सीपीयू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर, लेकिन देयर इज वन न्यू थिंग, यहाँ पे आपकी कैश मेमोरी भी एग्जिस्ट करती है विच इज वेरी वेरी स्मॉल। आपकी यूजुअली गेम्स के आप कैश मेमोरी देखो, यू क्लियर कैश डेटा एंड उसमें क्या होता है, गेम स्टार्ट से लगने लग जाती है, आपका सेव डेटा चला जाता है। क्यों सेव डेटा? सेव डेटा इज यूजुअली द डेटा विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली access, right? Like if you're playing Clash of Clans right now, and Clash of Clans में you have that account in your game, तो आप जब भी गेम ओपन करते हो तो दैट इज द वन थिंग विच इज इमीडिएटली प्रोसेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड, राइट? कि आपका वो गेम आपकी लोड हो जाए एंड आपका अकाउंट लोड हो जाए, तो अकाउंट के रिलेटेड जो डेटा दैट इज स्टोर्ड इन योर कैश मेमोरी, ताकि सीपीयू इफ इट वांट्स टू लोड द गेम इट विल बी लाइक ओके, is there any relevant data in the cache memory? Okay, yes it is. तो सी कंप्यूटर CPU and cache memory जब आपस में communicate करें तो this is faster, it is way more faster than getting the data from the RAM directly. तो इस वजह से हमारे पास एक चौथी चीज आती है, use of cache memory. Cache memory is that specific type of memory which stores the most frequently used data and instructions. तो जब आप cache memory को basically increase करते हो, when you increase the amount of cache memory in your computer, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आपकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है आपकी वो ज्यादा हो सकते हैं, यू कैन स्टोर मोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। एंड जब आपकी ज्यादा से ज्यादा कैश मेमोरी होगी तो just because cache memory is very very fast when connected with CPU, तो आपका डेटा क्विकली एक्सेस किया जा सकता है, क्विकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एंड ये चार तरीके हैं टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। सो रेहान just said, sir, when we clear our cache and use the app again, the app restarts. बिल्कुल। Now what does that mean? Basically when you're playing some sort of game and you clear the cache memory, आपकी गेम जीरो से स्टार्ट हो जाती है, just from the very start. Like if you have logged into it, आप मेमोरी कैश मेमोरी क्लियर कर देते, फिर आपकी गेम बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपने फ्रेश गेम डाउनलोड और इंस्टॉल की हो। Now why is that? Because when you play that game, when you start to play that game, उस गेम को खेलते वक्त जो आप डेटा सेव करते हैं, like if I'm playing some game, यार ये मैं आपको बाद में सेफलो कर दूंगा, डोंट वरी, इसमें इजी सीन है कोई बोल, लेकिन आप मैं कोई गेम खेलो, आई वांट टू प्ले लेट्स से कौन सी गेम, अब मैं वो खेल रहा हूँ यार, हिल क्लाइंब रेसिंग वाली गेम, उसके अंदर यू सी कि हम न्यू मैप्स अनलॉक कर सकते हैं, राइट? हम न्यू मैप्स अनलॉक कर सकते हैं, बट द मोमेंट आई क्लियर माय कैश मेमोरी, क्या होता है, ऑल दोस मैप्स गो, इट वैनिशेस एंड द गेम इज जस्ट लाइक द वे आई डाउनलोडेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज कैश मेमोरी स्टोर्स व्हाट? It stores the most frequent use data. So in the case of a game, in the case of my game Hidden Climb, जो सबसे frequently used data मेरे लिए होगा ना, and the most important data, that is basically my save files. So जो सेव फाइल्स जो होंगी ना, सेव फाइल्स गेम की, वो हमारी स्टोर होंगी कैश मेमोरी के अंदर, क्योंकि व्हेन आई लोड अ गेम तो सबसे पहले उसमें जो गेम के रिलेटेड सेव डेटा होगा उसको एक्सेस करना होगा, राइट? तो उसको एक्सेस करना ये कैश मेमोरी से क्विकली होगा। सो इस वजह से जो हमारी सेव फाइल्स होंगी, दोज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन योर कैश मेमोरी। सो व्हेन द मोमेंट वी क्लियर आवर कैश मेमोरी, हमारी सेव फाइल सब कुछ डिलीट हो जाते हैं, एंड देन हमारे गेम बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली द फोर मेथड्स जो कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। यूज ऑफ कैश मेमोरी, सिस्टम क्लॉक को स्पीड इंक्रीज करना, ओवरक्लॉकिंग, एंड फिर आपके पास आ जाता है ये डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स, एंड फर्स्टली द बस विड्थ। So these are the four things. Are these four clear or not? And with that, our today's class is ended. So yes, great to know. Great to know. Your mic is off, sir. My bad, my bad, my bad. So basically, Allah Hafiz, Rehan, Allah Hafiz, Allah Hafiz. Great to know, Ahmed. Okay, okay, okay. Thank you, Rehan, Ahmed, and everybody else. Bye, Ahmed. Okay, Saifullah. So I was explaining कि देखो आपका जो ये वाला सीन है ना, there is a possibility, there is a great possibility कि जो आपका context है इसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि जो मतलब आपकी जो डेटा है ना, शायद वो उसमें स्टोर ही ना हो कैश मेमोरी के अंदर। जरूरी नहीं है कि कैश मेमोरी के अंदर हमेशा सेव फाइल हो, इट्स नॉट नेसेसरी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो आपकी गेम के रेलिवेंट डेटा है ना, ये आपके अकाउंट के साथ लिंक होकर अपलोड हो चुका हो, तो जब आप अपलोड होकर फिर से गेम डाउनलोड करें तो आप अकाउंट के साथ लॉग इन हो, तो वो उसके बाद आपके खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। तो इट इज नॉट मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड इन योर कैश मेमोरी, दैट माइट बी अ पॉइंट। या फिर आपके बैकअप के ऊपर वो शायद गूगल क्लाउड मेमोरी या कोई गेमिंग वाले जो उनका होता है उसके अंदर स्टोर हो चुका हो, तो वहां से वो रीलोड हो जाए या कोई इस तरह का सीन। सो दैट माइट बी द वेरी मोस्ट पॉसिबल केस इन दिस सिनेरियो। समझ आ गई? परफेक्ट।
Perfect. So let me just send up the recording.